everybody, how are you all? I hope you all are doing great. So in today's lecture we're going to start differential equation. So just see what's the definition of differential equation. This lecture is basically an introductory lecture for the differential equation, where we know the definition, classifications, variety of differential equations, order, linearity. This is the basic concept for the introduction. So this video is basically an introduction video. So let's see the definition. An equation containing the derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is said to be a differential equation. Okay, so यहाँ पर आपके लिए दो वर्ड्स न्यू होंगे, दैट इज़ बेसिकली एन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये क्या होता है उसके लिए हमें वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल. So dy by dx, this is the derivative of y with respect to x plus 2y is equals to cos x. This is an equation, differential equation जो हमने ली है. तो इसमें अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, वी हैव टू सी इट. Now here y is the dependent variable and x is an independent variable. क्यों? क्योंकि यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, वेयर x इज़ एन इंडिपेंडेंट. x इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि x किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है dy बाय dx. तो y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर. दैट्स वाई y इज़ एन डिपेंडेंट वेरिएबल and x is an independent variable. Why it is independent? Because x किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. That's why here y is independent variable and x is an independent variable. I hope you got the definition of differential equation. Now we are moving ahead with the classification of differential equation. Basically डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. दैट फर्स्ट इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड इज़ एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ़ एन इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to a single independent variable, that is known as the ordinary differential equation. With one or more dependent variable means अगर हम dy by dx की बात करें तो यहाँ पर dependent क्या था, y. So one or more dependent variable with respect to a single independent variable means x. तो मतलब यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, d स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है. मीन्स dy बाय dx प्लस मीन्स d डबल डेरिवेटिव और dz बाय dx कर सकते हैं हम. ठीक है, ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो सकते हैं, बट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी देयर. दैट इज़ नोन एज द ordinary differential equation. Now here with the partial differential equation, an equation involves partial differential equation of one or more dependent variable of two or more independent variable. Here is the difference in the ordinary and the PDE, that कि यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एंड हियर देयर आर two or more independent variable, then it is known as called as PDE, that is known as the partial differential equation. Here in PDE we will denote derivative as del operator. Del operator is something like this. Okay, and del z by del x plus del z by del y is equals to x and y. मतलब यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं प्लस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफरेंट हो सकते हैं. दैट इज़ नोन एज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ
Here onwards we will write ODE as the ordinary differential equation and PDE as the partial differential equation. Now by the classification by the order of the differential equation, order क्या होता है in differential equation? Order of a differential equation is either ODE और PD. हम differential equation मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में order क्या होता है is the order of the highest derivative in the equation. पूरी equation में highest derivative कौन सा होगा, that is known as the order. So अगर we take an example over here, जो हमने first example लिया था dy by dx plus 2y cos is equals to cos x, तो इसका order क्या होगा? इसका order क्या होगा means highest derivative in the equation is 1. इसका highest derivative degree 1 order dy by dx is 1, so its order is 1. Highest derivative is 1, so the order is 1. Now next we will tell some orders, some examples. d square y by dx square plus 3 dy by dx is equals to y d cube y by dx cube. मतलब थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, दैट दिस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3. ठीक है, यहाँ पर है पी डी, क्योंकि डेल ऑपरेटर आ गया मीन्स दिस इज द पी डी. डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई. तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1, बिकॉज हाइएस्ट ऑर्डर इन दिस इक्वेशन इज 1. नाउ हियर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियरिटी, लीनियरिटी क्या होती है यहाँ पर 3 पॉइंट्स में विल डिफाइन हाउ द इक्वेशन इज लीनियर और नॉट, दैट द इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर. हम कैसे बताएंगे, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से दैट द इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर. सो द फर्स्ट डिग्री ओनली द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड अपीयर इन द फर्स्ट टू द फर्स्ट पावर. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y एंड उसका डेरिवेटिव मतलब dy by dx टू द फर्स्ट पावर, मतलब इनकी पावर 1 होनी चाहिए. मीन्स y स्क्वायर भी नहीं होगा या सेकंड डेरिवेटिव भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सिर्फ y एंड dy by dx, मतलब पावर 1 होनी चाहिए दोनों की, तभी इस लिनियरिटी हो सकती है. एंड नो प्रोडक्ट्स means there should no term where the dependent variable and its derivative are multiplied together. मतलब y इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ठीक है, दोनों की पावर 1 है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है. डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं हो सकता. तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स दैट द लिनियरिटी डज नॉट होल्ड. Now here the coefficients as the function of independent variables, the coefficients of the dependent variable and its derivative can only be the function of the independent variable, not the dependent variable itself. मतलब यहाँ पर जैसे ये हो गया coefficient, the coefficient of the dependent variable and its derivative, coefficient of y and dy by dx ऑफ द फंक्शन बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट x हो सकते हैं, बट ये मतलब ये अलग अलग इक्वेशन है. यहाँ पर x इंटू वाई हो सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाइड बाय डिपेंडेंट हो सकता है, बट डिपेंडेंट ऐसे नहीं हो सकता. ओके, कोफिशिएंट शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है. दैट्स इट. दिस what's this point trying to say? Okay, now we'll take some example. So this is the linear equation. यहाँ पर dy by dx की पावर डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव की पावर 1 है. p of x मतलब any term of an independent variable multiplying with the dependent variable. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड भी हो गई, फर्स्ट भी हो गई हमारी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर, इज इक्वल्स टू q of x. तो ये इक्वेशन लीनियर है,
क्योंकि ये भी सेटिस्फाई हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिग्री कि y और उसका डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। सेकंड, y और y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड भी नहीं है कि इस इक्वेशन में। थर्ड, उनके कोफिशिएंट x से मल्टीप्लाई हो सकते हैं बट डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। सो दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर में क्लियरली हम बता सकते हैं as dependent variable and its derivatives are multiplying together, which violates the second condition. So this condition is non-linear differential equation. Okay, this is an example of a non-linear differential equation. I hope you got it. I hope you got it. Thank you. Please like, share and subscribe. I hope you got it. Please like, share and subscribe. Thank you.